Jai Gurudev students and very good morning. I am your science teacher and today we discuss reproduction in plants. In last period we discussed about reproduction in plants by asexual reproduction. Just we revise it. The process of producing young ones of और प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन हैज़ टू फॉर्म्स, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction involves only one parent. सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं who will pass on all his traits to his offspring look exactly alike, जिसमें उनके ऑफस्प्रिंग बिल्कुल उनके जैसे ही दिखाई देते हैं. एंड इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स who produce a new individual and share some traits to their offspring. But the parent and the offspring are not exactly alike. It is the basic difference between asexual and sexual reproduction. Because in asexual reproduction only one parent involved, in sexual reproduction two parents involved. So they are not exactly alike in sexual reproduction. Asexual reproduction में हमने देखा था by fragmentation, by budding and by spore formation. And their examples are by fragmentation Spirogyra, by budding yeast, hydra bacteria and spore formation in moss and ferns. Now we come to vegetative propagation. Vegetative propagation it is also a form of asexual reproduction. ये भी asexual reproduction का ही एक तरीका होता है, in which a new plant grows from the parent plant's fragments such as its roots, stems, leaves and buds. जैसे आपने किसी एक प्लांट को देखा हो तो उसमें रूट्स होती हैं, देन स्टेम होता है, लीव्स होती हैं. तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. सो इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. Vegetative propagation may be classified into the following two types. अब vegetative propagation भी two types का होता है. First is natural vegetative propagation and second is artificial vegetative propagation. So first we discuss about natural vegetative propagation. It has some kinds. First is reproduction through roots. So in this method, vegetative propagation through roots, when roots of some plants are embedded in soil, the buds present on the roots grow and form new plants. और जब भी ये रूट्स के थ्रू होता है, तो जब भी ऐसे कोई प्लांट्स होते हैं जिनकी हम रूट्स को निकाल करके फिर से सॉइल में लगा देते हैं, तो उससे हमको फिर से एक नया प्लांट मिल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट पोटैटो, जिसको हम हिंदी में शकरकंद भी बोलते हैं, कैरेट, रेडिश, शीशम, डहलिया, these are the examples of reproduction through roots. Next is reproduction through stems. Stem is also a vegetative part of the plant. So through stems में भी फिर और भी kinds हो जाएंगी. First is underground stem. अब stem भी कुछ stem ऐसे भी होते हैं जो soil के अंदर होते हैं. For example ginger, colocasia जिसको हिंदी में corn कहते हैं, tubers जनरल लैंग्वेज में पोटैटो कहते हैं, bulbs, onion, turmeric. These are the examples of underground stems. Second is creeping stem. Creeping stem means जो एक लेयर के जो एक बेल की तरह चलते हैं स्टेम. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मिंट. मिंट मीन्स पुदीना, हिंदी में जिसको हम पुदीना कहते हैं, जो गर्मियों में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग. तो उसका स्टेम निकाल करके हम यदि फिर से लगा देते हैं तो एक पूरी लेयर उसकी आ जाती है.
थर्ड इज एरियल शूट्स। एरियल शूट्स मीन्स जो स्टेम बाहर होता है, सॉइल के बाहर होता है, तो उसकी एक ब्रांच काट के यदि हम सॉइल में लगा दें तो उससे भी एक नया प्लांट निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। एंड थर्ड इज रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। अभी हमने किस किस का देखा था? रूट्स का और स्टेम का। स्टेम में भी हमने 3 काइंड्स देखी थी, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम एंड एरियल शूट्स। नाउ वी कम टू रूट्स स्टेम्स के बाद में अब हम आते हैं थर्ड टाइप इज रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। जब हम किसी प्लांट की लीव को लगा देते हैं तो फिर वो भी, उससे भी एक न्यू प्लांट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल बेगोनिया ब्रायोफिलम, जैसे इसकी कोई एक लीफ है, इस लीफ को यदि हमने सॉइल में लगाया है तो उसकी साइड में हमको और छोटी छोटी लीव्स दिखाई देती हैं और जल्दी ही उनमें फिर एक न्यू प्लांट निकल आता है, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रायोफिलम। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू बल्ब्स। बल्ब्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ओनियंस, ऑक्जेलिस, शैलोट्स, लिलीज, ट्यूलिप्स। So these are the natural vegetative propagation. Examples of natural vegetative propagation. Now we come to artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation means जब when propagation does not occur by natural means. So we need to do artificial vegetative propagation. Farmers, gardeners use this method to produce plants that are identical to the parent plant. इस मेथड को फार्मर्स, गार्डनर्स तब यूज़ करते हैं जब उनको पेरेंट प्लांट की तरह ही दूसरा प्लांट चाहिए होता है। सो दे हैव सम काइंड्स। फर्स्ट बाय कटिंग। बाय कटिंग में क्या होता है, एक कोई भी एक डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्टेम, रूट और लीफ। तो ये इनको फिर से रीग्रो कराने के लिए जो पार्ट होता है उसको हम फिर से सॉइल में लगा देते हैं। जैसे शुगर केन, इसको हम गन्ना भी कहते हैं। रोज़, हिबिस्कस मीन्स ये जो देवी फूल जिसको बोलते हैं, जासौन का फूल होता है। तो इन की कटिंग के द्वारा हम न्यू प्लांट इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो शुगर केन में क्या होता है, हम उसकी एक, जो शुगर केन हम खाते हैं उसके एक डंठल को हम लगा देते हैं और सॉइल में, तो एक पूरा गन्ना हमको मिल जाता है। सेकेंड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज द मेथड ऑफ अटैचिंग अ पोर्शन ऑफ वन प्लांट टू अ स्टेम, रूट और ब्रांच ऑफ अनदर, joining two plants as one to provide variety. देखिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया है इन्होंने, एक जो स्टेम है इसमें हमको जो प्राप्त करना होता है, जैसे हमको यहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग की है, इसमें हमने क्या लगा दिया, एक और ग्राफ्ट कर दिया, उसमें उसको अटैच कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक इतना प्लांट हमको पूरा मिल जाएगा और फिर यही एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है। थर्ड इज लेयरिंग। लेयरिंग मतलब बाय क्लाइंबिंग रोजेज। इसमें क्या होता है कि जो भी लेयरिंग, एक लेयर होती है। Layering is a form of plant propagation in which an above ground stem develops roots while still attached to the parent plant and then detaches itself and grows as an individual plant. तो ये एक तरह का प्लांट प्रोपेगेशन है जिसमें क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम होता है वही रूट्स को डेवलप करता है। जैसे ग्राउंड की, ये ग्राउंड है